हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास की बुक टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 to 1917, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. Only the causes political, socio-religious, economic and military and consequences will be tested. The events, however, need to be mentioned in the order to maintain continuity and for a more comprehensive understanding. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1917, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1917, स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम 1857। केवल कारणों राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य ये परिणाम का परीक्षण किया जाएगा यहाँ पर। हालांकि निरंतरता बनाए रखने के लिए और अधिक व्यापक समझ के लिए घटनाओं का भी उल्लेख करना आवश्यक है। The process of British conquest of India, which began from mid-18th century, and the subsequent consolidation of British rule was represented by Indians belonging to all the segments of Indian society: kings, queens, peasants, landlords, tribals, and soldiers. Hardly a year passed till 1857 when some part of the country or the other did not rise in revolt against the policies and actions of the British that harmed their interest or went against their sentiments. However, these rebellions were local, scattered, and isolated. They did not pose a serious threat to the British. Nonetheless, these revolts established a local tradition of struggle against the foreign rule. This resentment to the British rule culminated in the First War of Independence in 1857, in which millions of peasants, artisans, and soldiers participated. It shook the British government to its very foundation. 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुई भारत पर ब्रिटिश विजय की प्रक्रिया और उसके बाद ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण से भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग नाराज थे। राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी और सैनिक। 1857 तक की शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जब देश के किसी न किसी हिस्से में अंग्रेजों की नीतियों और कार्यों के खिलाफ विद्रोह ना हुआ हो, जो उनके हितों को नुकसान पहुंचाते थे या उनकी भावनाओं के खिलाफ थे। हालांकि यह विद्रोह स्थानीय, बिखरे हुए और अलग अलग ही थे। इनमें से अंग्रेजों को कोई गंभीर खतरा नहीं था, फिर भी इन विद्रोहों ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष की एक स्थानीय परंपरा स्थापित कर दी। Causes of the First War of Independence. The first 100 years of British rule in India from 1757 to 1857 were marked by British conquest and rapid expansion of their dominion in India. The combined effect of British expansionist policies, economic exploitations, and administrative changes adversely affected all segments of India's society. The ruling classes were dispossessed of their power, and peasantry was deprived of its land, rights, and the artisans lost their livelihood. The middle and the upper classes of Indian society, particularly in northern India, were annoyed because of their exclusions from the well-paid higher post in the administration. Men who followed cultural and religious activities like priests and scholars found themselves without income as they lost their patrons. The Indian rulers, princes, and jamindars who had themselves lost their authority, the company's Indian soldiers were discounted and their low salary, hard life, and the ill treatment meted out of them by the British officers. Thus, by the 1857, conditions were ripe for a mass uprising, and the accumulated grievances of the people burst from in the form of the First War of Independence. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में ब्रिटिश शासन के पहले 100 साल 1757 से 1857 तक ब्रिटिश विजयों और भारत के उनके प्रभुत्व की तेजी से विस्तार से चिन्हित दिखलाई देते हैं। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण
और प्रशासनिक परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव से भारतीय समाज के सभी वर्गों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। शासक वर्ग ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, साथ ही अन्य वर्गों की शक्ति को भी उसने वंचित कर दिया। किसानों को उनके भूमि अधिकारों से वंचित कर दिया गया और कारीगरों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। भारतीय समाज के मध्य और उच्च वर्ग, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, प्रशासन में उच्च वेतन पाने वाले उच्च पदों से बाहर रखे गए, जिनसे वे नाराज थे। पुजारी और विद्वान जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल लोग भी अपनी आय नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने संरक्षक भारतीय शासक राजकुमार जमींदार उन्हें भी उनके अधिकारों से वंचित होता हुआ पाया। कंपनी के भारतीय सैनिक अपने कम वेतन, कठिन जीवन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से भी असंतुष्ट थे। इस प्रकार 1857 तक बड़े पैमाने पर विद्रोह के लिए परिस्थितियां परिपक्व हो गई और लोगों को संचित शिकायतें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लाने के लिए विवश कर गई। पॉलिटिकल कॉजेज। द पॉलिटिकल रीजंस which antagonized the Indian rulers were the following. Policy of expansion. The British policy of territorial expansion and gradual annexations of the native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey, June 1757, the East India Company's territorial power increased rapidly. The British tried to expand their political power in India by 4 ways. That is, by outright wars, by the system of subordinated alliance, by adopting the doctrine of lapse, and on the pretext of alleged misrule. राजनीतिक कारण। भारतीय शासकों को नाराज करने वाले राजनीतिक कारण कुछ इस प्रकार थे। विस्तार की नीति यानी ब्रिटिश नीति। क्षेत्रीय विस्तार और देशी भारतीय राज्यों के क्रमिक विलयन की प्रवृत्ति भारतीय शासकों की प्रमुख शिकायतों में से एक थी। पलासी का युद्ध, जो जून 1757 में हुआ था, के बाद ही पूर्व भारत के राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार 4 तरीकों से करने की कोशिश की, यानी प्रत्यक्ष युद्धों द्वारा, सहायक प्रणाली द्वारा, गठबंधनों द्वारा, हड़प नीति के द्वारा। उसने कथित कुशासन के बहाने भी यह कार्य किया। बाय आउटराइट वॉर्स टू एक्सपेंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया and to safeguard their economic and political interest, the British waged many wars against the Indian rulers of different stages. The Battle of Buxar, 1864, established the British as master of Bengal, Bihar and Odisha. As a result of their success in Anglo-Mysore, 1767 to 1777, the East India Company annexed most of the territories of the Mysore state. After the Third Anglo-Maratha War, 1817 to 18, the Peshwa's entire dominions and all Maratha territory north and south of the Narmada River were acquired by the British. The Punjab was annexed in 1849 after the Sikh were defeated in the Second Anglo-Sikh War. From 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering Sindh, territories of Assam, Arakan and Tenasserim and Pegu in Myanmar. प्रत्यक्ष युद्धों द्वारा भारत में अपनी क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार करने और अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न राज्यों के भारतीय उपनिवेशवादियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। बक्सर की लड़ाई, जो 1764 ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी के रूप में स्थापित किया। एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1799 में हुई थी, में उनकी सफलता के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध, जो 1817 से 1800 के बीच में था, पेशवा के पूरे प्रभुत्व और नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में सभी मराठा क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा अधिकृत किए गए थे। दर्रा एंग्लो सिख युद्ध में सिखों की हार के बाद 1849 में पंजाब पर भी कब्जा कर लिया गया था। 1823 से 1856 के बीच ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाया
उन्होंने सिंध और आसाम के जो हिस्से थे, अराकान और तेनेसेरियम और पेगू जो कि म्यांमार का हिस्सा था, उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा बना लिया। By subsidiary alliance, some Indian states were brought under the British control without actually annexing them. This was done by following the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. Subsidiary alliance was an agreement between the British East India Company and the Indian princely state by virtue of which these states lost their sovereignty, the power of ruler to rule independently without any outside interference to the British. Under this system, the Indian rulers who agreed to the subsidiary alliance first accepted the British as a supreme power, second surrendered their foreign relations to the East India Company and agreed that they would enter into any alliance with any other power and would not wage wars. Third, accepted a British resident at their headquarters and agreed not to employ any European their service without consulting the company. Fourth, agreed to maintain British troops at their own cost. And fifth one, virtually lost their independence. The king of Awadh was the first to enter into an alliance like this through the Treaty of Allahabad in 1765, by which the company undertook to defend the frontier of Awadh on the condition that the Nawab of Awadh would pay for the expenses of such defense. However, Awadh was annexed on the pretext of misrule in 1856. The other states which accepted the subsidiary alliance were the Nizam of Hyderabad, the ruler of Mysore, the Raja of Tanjore, the Sindhia, and the Rajput states of Jodhpur, Jaipur, Macheri, Bundi, and the ruler of Bharatpur. सहायक संधि द्वारा कुछ भारतीय राज्यों को वास्तव में उन्हें शामिल किए बिना भी ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि का पालन करने के लिए किया गया था। सहायक संधि कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक समझौता था जिसके तहत इन राज्यों ने अपनी संप्रभुता यानी किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शासन करने की शक्ति अंग्रेजों को दे दी थी। इस प्रणाली के तहत भारतीय शासक जो सहायक संधि के लिए सहमत हुए थे, प्रथम अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपने विदेशी संबंधों को समर्पित किया और इस बात पर सहमत हुए कि वे किसी अन्य शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ना ही युद्ध करेंगे। तीसरा, अपने मुख्यालय में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार किया और बिना परामर्श के किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करने पर सहमत हुए। चौथी, ब्रिटिश सैनिकों को अपने खर्च पर बनाए हुए रहना होगा और सहमत होना होगा उस बात पर। पांचवी, अपनी स्वतंत्रता भी उन्हें खोनी पड़ेगी। अवध राज्य जो 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से इस तरह के गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला राज्य था। इसके तहत कंपनी ने अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन इस शर्त पर दिया था कि अवध के नवाब इस तरह के खर्च का भुगतान स्वयं करेंगे। हालांकि 1856 में कुशासन के बहाने अवध को मिला लिया गया था। अन्य राज्य जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया वे थे हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक, तंजौर के राजा, सिंधिया और जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी के राजपूत राज्य और भरतपुर के शासक। पॉइंट सी, by using the doctrine of lapse, Lord Dalhousie, the Governor General of India, annexed many Indian states to the company using the doctrine of lapse. According to this doctrine, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is, it would come under the company's territory in India. When the ruler of Jhansi died in 1853, leaving no natural heir, the widowed Rani was
pensioned, and their adopted son. Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. These other prominent states which were annexed by applying this doctrine were Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Nagpur. The principle of lapse was also applied to take away the titles and pensions of the rulers of some states. Regal titles of Nawabs of Karnataka and Tanjore were taken away. These caused discontent among the rulers as well as among the people of general. The rulers of Indian states believed that their states were annexed not by the applications of doctrine of lapse but by the lapse of all morals on the part of British. हड़प सिद्धांत का उपयोग करके भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत यानी हड़प सिद्धांत का उपयोग करके कई भारतीय राज्यों को कंपनी में मिला लिया। इस सिद्धांत का अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य हड़प में चला जाएगा यानी व्यापकगत हो जाएगा, अर्थात वह भारत में कंपनी के क्षेत्र में आ जाएगा। जब 1853 में झांसी के शासक की मृत्यु हो गई और उनके कोई स्वामी स्वाभाविक रूप से जो उत्तराधिकारी होते हैं वो नहीं बचे तो विधवा रानी को पेंशन दी गई और उनके जो दत्तक पुत्र थे आनंद राव उनको सिंहासन पर बैठना वैध नहीं करार दिया गया। इस सिद्धांत को लागू करके जिन अन्य प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया ब्रिटिश में वे थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। कुछ राज्यों के शासकों की उपाधियों और पेंशन भी छीन लिए गए और ये हड़प की जो सिद्धांत है उसको लागू कर लिया गया। कर्नाटक और तंजौर के नवाबों की शाही उपाधियां भी छीन ली गई। इन शासकों के साथ साथ आम लोगों में असंतोष का फैलना जाहिर था। भारतीय राज्यों के शासकों का यह मानना था कि उनके राज्यों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा हड़प की गई भूमि हड़पने के सिद्धांत के कारण नहीं बल्कि सभी नेताओं की उपेक्षा के कारण कब्जा की गई थी। Point D. On the pretext of alleged misrule. In 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh to the company's dominions on the pretext of alleged misrule. He declared that Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. Lord Dalhousie justified the annexations of Awadh on the pretext of the good of the governed. On the contrary, the people of Awadh had to face more hardships. They had to pay higher land revenue and additional tax on food houses and ferries. Thus, solutions of the Nawabs of Awadh's army and administrations threw thousands of nobles, officials, and soldiers out of jobs. The British confiscated the states of the Talukdar or Jamindar, the dispossessed Talukdar became the opponents of the British rule. The company spoil of the whom 70,000 were from Awadh were the worst affected. These soldiers had helped the British to conquer the rest of India, but they resented the fact that their homelands had come under foreign rule. The annexations of Awadh also affected the soldiers' financial positions. They had to pay higher taxes on land their families held in Awadh. Enraged by the humiliating way in which the Nawab of Awadh was deposed, the people of Awadh joined the uprising that broke in 1857. Awadh played a major role in the uprising of 1857. कथित कुशासन के बहाने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के बहाने ही अवध को कंपनी में मिला लिया। उन्होंने ये घोषणा भी की कि कंपनी को अपने अधीन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शासित की भलाई यह सही लग रहा था। उनके विपरीत अवध के लोगों को कई कठिनाइयों का और सामना करना पड़ा। उन्हें कई भू राजस्व, भोजन, मकान और नौकाओं पर एक्स्ट्रा या अतिरिक्त खर्च देना पड़ता था। अवध की नवाब की सेना और प्रशासन के विघटन में हजारों सरदार, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने तालुकदारों या जमींदारों की संपत्तियां लूटकर या जब्त कर कर बेदखल तालुकदार ब्रिटिश शासन के विरोधी बनेंगे, ये उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया।
कंपनी के सिपाही, जिनमें से 75,000 अवध से थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि उनकी भूमि विदेशी शासन के अधीन आ गई थी। अवध के विलय से सैनिकों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा था। उन्हें अवध में अपनी परिवार के जमीन से ज़्यादा कर देना पड़ता था। अवध के नवाब को अपमानजनक तरीके से पद से हटा भी दिया गया था, जिससे उन्हें क्रोध भी भरा पड़ा था। अवध के लोग 1857 में हुए विद्रोह में शामिल हो गए। अवध में 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका वे निभाए भी थे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसरेस्पेक्ट shown to Bahadur Shah. Bahadur Shah Jafar, the Mughal ruler, was under the protection of company. They received a pension from the British. The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Lord Dalhousie announced that successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near the Qutub Minar. In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successors would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as mere princes. The decisions of British hurt the feelings of the Mughals. Consequently, Zinnat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. Next point है बहादुर शाह का अनादर। मुगल शासक बहादुर शाह जफर कंपनी के संरक्षण में थे और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिला करती थी। कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों में मुगल राजा का नाम भी हटा दिया गया। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किलों को अपने महल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें कुतुब मीनार के पास किसी स्थान पर स्थानांतरित कर देना होगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को उनके नाम के साथ शाही उपाधियों का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं होगी और उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही जाना जाएगा। अंग्रेजों की इस बड़े फैसले से मुगलों की भावनाएं आहत हुई। नतीजतन क्या हुआ? बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। Point 3. Treatment given to Nana Sahib. Nana Sahib was the adopted son of Baji Rao II, the last Peshwa. The British refused to grant Nana Sahib the pension they were paying to Baji Rao II. Nana Sahib was forced to live at Kanpur, far away from his family seat at Pune. Now this is Pune. This was widely resented in the Maratha region. Nana Sahib had inherited wealth for the foreign Peshwa, which he utilized in sending emissaries of different parts of the country for generating awareness among the Indians about the British policies. Nana Sahib also travelled between Delhi and Lucknow to gather support for movement. Other Indian rulers who were not adversely affected also become suspicious of their future. नाना साहब को दिया गया व्यवहार अर्थात नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। जो भी बाजीराव द्वितीय को दे रहे थे, नाना साहब को अपने परिवार की जो सीट थी, जगह थी पूना, वहाँ से बहुत दूर कानपुर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। मराठा क्षेत्र में उनका व्यापक विरोध भी हुआ। नाना साहब को पूर्व पेंशन से विरासत में जो संपत्ति मिली थी, मतलब पूर्व पेशवा से जो विरासत में संपत्ति मिली थी, उनका उपयोग वे देश के विभिन्न हिस्सों में दूध भेजकर भारतीयों में ब्रिटिश नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कर रहे थे। नाना साहब ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली और लखनऊ के जैसे यात्राएं भी की, यानी उसके बीच उन्होंने यात्राएं भी की। अन्य भारतीय शासक जिन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, वे भी अब अपने भविष्य के प्रति संशित हो रहे थे या भयभीत हो रहे थे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, एब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश मीन्स that India was being ruled by the British government from England.
at a distance of thousands of miles. This was resented by the Indians. The earlier ruler, like Mughals who had conquered India, had in course of time settled in India. The revenue they collected from the Indians were spent in India only. But in the case of Britain, the Indians felt that they were being ruled from England, and India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. ब्रिटिशों की अनुपस्थिति संप्रभुता। अंग्रेजों की अनुपस्थिति संप्रभुता का मतलब था कि भारत पर हजारों मील की दूरी पर इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार का शासन हो या शासन था। यह भारतीयों के लिए बहुत बुरा बात था, यह बहुत ही खराब बात था। मुगलों को जैसे पहले के शासकों ने भारत पर विजय प्राप्त की थी, भारत समय के साथ भारत में बस गए थे। वे भारतीयों से एकत्र राजस्व भारत में ही खर्च किया जाता था, लेकिन ब्रिटेन के मामले में भारतीयों को लगा कि उन पर इंग्लैंड से शासन किया जा रहा है और भारत की संपत्ति इंग्लैंड में जा रही है। उसका उपयोग वो अपने कल्याण के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी भारतीय संपत्ति का भारत में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो सारा बहकर इंग्लैंड की ओर जा रहा है। इस प्रकार कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल कॉजेज को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में सोशियो रिलीजियस कॉजेज को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।